Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all in my YouTube channel, Sanskrit English e-learning. Students, today we will discuss our unit number 8, Sakshi Bhutah Manusyah, human being as a witness. Look here, this is the introduction of the unit. I am going to read it. In this world, good and bad incidents happen at every place and every moment. Various objects existing on the earth in contact with each other are becoming witness of these incidents. Non-living objects like stones, etc., and living beings like birds, animals, human beings have the chance to witness these happenings. Because of one's peculiarity, these witness objects play different role. Non-living objects like stone, without doing anything, become witness of any accident. Beasts like cow, etc., run away from place of accident and try to save themselves. Nothing else can be expected from both of them except this type of behavior. But man's situation is little different from them. Such as a person witnessing accident feels sorrow for the afflicted person. He also becomes active to help the victim and thus performs his duty. He also tries to learn a lesson from it. Nowadays, due to heavy traffic, many road accidents take place. In this situation, many things are expected from the eyewitness, but they are not fulfilled. So it is the duty of a witness person that he should be ready to perform his duty. He should be ready to perform his duty. The lesson presented here in a dialogue form suggests the same. So this introduction describes that as a witness of an accident, what we should do, what is our duty, is given in this unit. One by one I will read this line and translate. Look here, the first line. Here Punitah and Sunitah, Punit and Sunit are talking to each other. मार्गे घटमानायाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति. दुर्घटनाया means accident, साक्षिणः means witness. So the translation of the first line, who became the witness of road accident. मार्गे घटमानायाः दुर्घटना यानी road accident. So who became the witness of road accident? Kim cha te acharanti. What does they do? Iti visayam. About this. Adhikrutya Punita Sunito Parasparam Samvadatah. Punit and Sunit talks to each other or talk about this subject. Now the first line of Punitah. भ्रातः ब्रदर मार्गे कदाचित् दुर्घटनाः अपि घटन्ति. Sometime, कदाचित् means sometime, दुर्घटना means accident. So sometime an accident occurs on the road. मार्गे means on the road, सप्तमी एक वचन, मार्गे. तत्र प्रायः प्रस्तरः, प्रस्तरः means stone, जड़ पदार्थ means non living, गवादयः cow, पशवः animals, मनुष्य human being, त्रयः साक्षिणः भवन्ति. त्रयः means three, साक्षिणः means witness. So these three are the witness. So once again, तत्र प्रायः प्रस्तर आदि जड़ पदार्थः, गवादयः, पशवः, मनुष्यश्च इति त्रयः साक्षिणः भवन्ति. Generally, non-living things like stone
animals like cow and human being are the three witness. Once again I repeat, generally non-living things like stone, animals like cow and human beings are the three witness. किम त्वं जानासि? डू यू नो? यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयो अपि भिन्नं भिन्नं कर्म समाचरन्ति. So the translation is, do you know? In response to the accident, यत घटिताया दुर्घटना संदर्भे. So in response to the accident, these three also act differently. सुनीतः न जानामि. I do not know. I don't know. प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तर आदि किं कुर्वन्ति. First of all say, what does the stone, non-living thing stone do? Say, what does the stone do? पुनीतः प्रस्तर आदि स्तु अचेतनाः सन्ति. Things like stone are अचेतनाः, means non-living. ते स्वयं क्रियां कर्तुं समर्था न भवन्ति. They themselves are not doing the activity themselves, or they are not doing the activity. अतः ते तथैव तिष्ठति, so that they remain as it is. तो यहाँ पर चैप्टर में क्या बताया है, मैं हिंदी में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ. पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद थोड़ा हिंदी में भी समझाऊँगा. यहाँ पर पुनीत और सुनीत आपस में बात कर रहे हैं. पुनीत बता रहा है कि जब भी रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसके थ्री विटनेस होते हैं. एक तो जो प्रस्तर यानी स्टोन होता है, दूसरी काव होती है और तीसरा मनुष्य होता है. अब ये तीनों एक्सीडेंट होते वक्त या होने के बाद क्या करते हैं और उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है. सबसे पहले तो ये स्टोन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो निस्तेज है, निर्जीव है, इसीलिए वह वैसे का वैसा पड़ा रहता है, वो कुछ भी एक्टिविटी करता नहीं है. तो यहाँ पर इसके बारे में बताया है. अब काव के बारे में. सुनीतः सचेतनाः पशवः पक्षिणः च किं कुर्वन्ति. व्हाट डज द लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स. पशवः पक्षिणः च, ये द्वंद्व समास है. पशवः पक्षिणः च, the animals and birds do. So what does the living things like animals and birds do? पुनीतः एते घटनायाः उत्थितात् ध्वने ड्यू टू दी साउंड ऑफ एक्सीडेंट भयम अनुभवन्ति. फील्स फियर. एक्सीडेंट के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे वह एनिमल्स भयभीत हो जाते हैं. अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति, सो दैट दे रन अवे. धावन्ति मीन्स हियर रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ एन एक्सीडेंट. वो उसी जगह से वहाँ पर भाग जाते हैं. जो काव वहाँ पर खड़ी होती है और एक्सीडेंट होता है और ज़ोर से आवाज़ आती है, उसके कारण, भय के कारण काव जो है वो वहाँ से भाग जाती है. अब जो पत्थर है, स्टोन है, वो वैसे का वैसा रहता है. ये काव जो है वो वहाँ से दूर चली जाती है. तो अब जो मेन ड्यूटी आती है वो किसकी है? ह्यूमन बीइंग की. सो नाउ द थर्ड वन. सुनीतः सत्यम वदति भवान. You are right. Bhavan means you. So you are right. गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति. Animals like cow are dull. निर्बुद्धयः means dull. जो काव होती है वो डल होती है, उसका माइंड ह्यूमन जैसा नहीं होता है. परंतु कश्चित, बट कश्चित सबुद्धि एन इंटेलिजेंट मानवो अपि
ह्यूमन बीइंग यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तर्हि पशुरेव स. Look here. Here writer compare the human being with the animal. If human being also run away from that place, it means he is like a animal, because cow also run away from that place. So the translation, you are right, animals like cow are dull, but an intelligent human being run away from that place of an accident, then he is like a animal. Okay. पुनीतः वस्तुतस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति. पुनीत यहाँ पर कह रहा है कि वस्तुतस्तु मनुष्य यदि मनुष्य इव वर्तते, इफ ह्यूमन बीइंग बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इफ जनरली इफ ह्यूमन बीइंग बिहेव वर्तते मीन्स बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, then he as a witness of an accident do 3 types of work. Okay, do 3 types of work. त्रिविधम कार्यम आचरन्ति. अब सबसे पहले तो वो जो स्टोन होता है वो कुछ नहीं करता है, फिर जो काव जैसे एनिमल होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं. पर जो ह्यूमन बीइंग होता है, इफ ह्यूमन बीइंग इज एन विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, देन ही इज डूइंग 3 टाइप्स ऑफ वर्क. अब वो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको 3 प्रकार के कार्य करने चाहिए. तो सबसे पहला है सुनीतः कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणि. विच आर द 3 थिंग्स ही शुड डू. वो ऐसे कौन से 3 कार्य है जो उसे करने चाहिए. अब ये जो 3 कार्य है उसके बारे में बोर्ड में और एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछी जाती है. जो शॉर्ट नोट होती है वह राइट द फर्स्ट एक्टिविटी और फर्स्ट वर्क, फर्स्ट ड्यूटी एज अ विटनेस ऑफ एक्सीडेंट, सेकंड ड्यूटी एंड थर्ड ड्यूटी. ओके, सो you have to prepare this also for short note. So here the Punitah Prathamam Karyam Asti Dukham Anubhutihi. The first work is to feel pain, or the first work is to experience sorrow. सबसे पहले एक्सीडेंट होते ही हमें क्या होना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए. मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति एंड सुखेन च सुखिनः. So, human being can be sorrow, दुखेन दुखितो भवति. यानी human being can be sorrow in pain, या तो in sorrowful condition. दुख की स्थिति में मनुष्य को किसी दुखी को देखकर दुखी होना चाहिए. किसी दुखी को देखकर हम हंसेंगे थोड़ी, हम खुश थोड़ी होंगे. तो दुखी को देखकर हमें दुखी होना चाहिए, यानी हमें थोड़ा दुख होना चाहिए. उसकी परिस्थिति देखकर हमें थोड़ा दुख होना चाहिए. सो ह्यूमन बीइंग्स कैन बी सॉरोफुल इन द सॉरो एंड हैप्पी इन हैप्पीनेस. सुखेन च सुखितः, हैप्पी इन हैप्पीनेस. अतः दुर्घटनया पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येण दुखानुभूति करणीया भवति. Okay, so human being should feel pain or sorrow. यहाँ पर ऐसा कहा गया है अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तम दुखितम जन्म दृष्ट्वा. So having seen the suffered person of an accident, the human being should experience sorrow. यह खलु एतादृशु जीवं पश्यन् अपि दुखम न अनुभवति. One who does not feel sorrow
आफ्टर सीइंग सच टाइप ऑफ पर्सन सह मनुष्यः न अस्ति, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट अपितु सह प्रस्तरः एव, बट ही इज लाइक अ स्टोन। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को राइटर ने दो चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। अगर ह्यूमन बीइंग वहाँ से भाग जाता है एक्सीडेंट के प्लेस से, देन ही इज़ अ एनिमल, क्योंकि काव भाग जाती है, काव जैसे एनिमल्स भाग जाते हैं। अगर वो पत्थर की तरह निस्तेज होकर वैसे का वैसा रहेगा, उसको कोई दुखी नहीं होगा, दुखी को देखकर कोई दुखी नहीं होगा, तो वो कैसा है? प्रस्तरः। उसको राइटर ने पत्थर के साथ कंपेयर किया है। सो ही इज लाइक अ स्टोन। यतो ही प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवन्ति, एज अ स्टोन नेवर फील sorrow of others. Okay, now the next line. सुनीतः यथार्थ भवान आह, you are right, या तो फिर you are saying right। आह का मतलब said होता है, इसलिए। मयापि बहुधा अपरिचितम दुर्घटनाग्रस्तम जनम पश्यता दुखम अनुभूतम अस्ति। I have also experienced pain to see some unknown suffering person due to accident। मुझे भी, अब ये सुनीत कह रहा है कि मुझे भी ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखकर दुख की अनुभूति होती है। तो ये पहला कार्य हुआ। कौन सा है पहला कार्य? कि किसी एक्सीडेंट जिसका हुआ है, ऐसे दुखी व्यक्ति को देखकर हमें भी दुख होना चाहिए, हमें खुशी होनी नहीं चाहिए। द्वितीयम कार्यम किम अस्ति। नाउ द सेकंड एक्ट, सेकंड वर्क, सेकंड ड्यूटी। व्हाट इज द सेकंड ड्यूटी और एक्ट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। दिस इज द half chapter of unit number 8. The remaining half chapter we will discuss in next period.